Hi students, so welcome to your much awaited session of the chapter Federalism. जितनी मुझे इस चैप्टर की रिक्वेस्ट आई है ना उतनी किसी चैप्टर की रिक्वेस्ट नहीं आई है आज तक सिविक्स की एंड आई रियली डोंट अंडरस्टैंड व्हाट इज सो टफ अबाउट दिस चैप्टर बट जो भी आपके डाउट्स हैं इस चैप्टर के आप मुझे सेशन के थ्रू आउट देखते हुए कमेंट्स में लिख के बताना बिकॉज दोज डाउट्स वुड आल्सो बी टेकन. Now let me introduce myself. I am your master teacher at Vedantu for social sciences. My name is Shubham Pathak. And today we are going to crack this amazing chapter. Now, before I start, this is my responsibility to tell you that you can avail everything that is going on in Vedantu for you, for your class, in just 2699. आपको बस एक कोड लगाना है SPPRO. SP is my name, Shubham Pathak, and PRO is the course's name, Pro Subscription. And by selecting your particular class, and by putting this code, you can avail the Pro subscription for 1 month. You can just try it for 1 month, and in that you will get all the micro courses, all the assignments, all the learning material, all the chapter wise explanations, everything, doubt solving, सब कुछ मिलेगा आपको इसमें. ठीक है? So it is my advice, do think about it. चलो, let's start with federalism. क्या होता है federalism? Federalism होता है easy peasy sharing. Whenever you hear the word federalism, just think of sharing because federalism में होती है power share. Now बच्चा, it is like a system of government in which the power is shared. अब sharing हो रही है तो at least you need two parties to share something, no? So at least two tiers of government होने ही चाहिए, दो levels तो government चाहिए ही share करने के लिए, right? So in a genuinely federal structure, there is a central authority जो central level पे होती है, जो uniform laws बनाती है country के लिए, and there is a provincial authority also. Now in some countries, the provincial authority is known as the state government, जैसे कि हमारी country में. But overall, if you see, federalism is a system of government in which power is divided, like I told you, between central authority and various constituent units. इसके अलावा आप state units भी लिख सकते हो, provincial units भी लिख सकते हो, depending upon what you want to, what you are more comfortable with. Now, general division की बात करें तो I told you at least two levels have to be there. And those two levels are not interdependent, they are independent. उनके अलग अलग काम हैं, अलग अलग finances हैं, सब कुछ अलग अलग है. आगे आपको चैप्टर में पता चलता रहेगा. Now one level of government and the sub units are subordinate. ये होता है unitary government. कंट्रास्टिंग, फेडरल गवर्नमेंट का एकदम ऑपोजिट होता है यूनिटरी गवर्नमेंट. इसमें कोई शेयरिंग नहीं होती पावर की. ठीक है? इसमें सारी की सारी पावर जो है सेंट्रल अथॉरिटी के पास होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती है. अब जब पावर शेयर ही नहीं हो रही है तो देयर इज नो सेपरेशन ऑफ पावर ऑल्सो. एग्जाम्पल इसका आपको पता है ऑलरेडी, श्रीलंका, बेल्जियम एंड श्रीलंका, वी हैव स्टडीड बोथ द कंट्रीज इन पावर शेयरिंग चैप्टर. नहीं देखा है तो मेरे सेशंस देख लो. नाउ इन बेल्जियम क्या हुआ था, फेडरल स्ट्रक्चर बना दिया था, लेकिन श्रीलंका सेंट्रल का सेंट्रल रह गया, यूनिटरी का यूनिट रह गया, राइट? सो दीज आर द टू कॉन्सेप्ट. देन फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म. पहला वाला फीचर तो हम डेफिनेशन से ही डिराइव कर देते हैं दैट देयर आर टू और मोर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट. दो तो होने ही चाहिए, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, राइट? अब हर लेवल का अपना अलग जुरिस्डिक्शन. नाउ बच्चा, व्हाट इज जुरिस्डिक्शन? जुरिस्डिक्शन इज अथॉरिटी टू मेक लॉज. तो सेंट्रल की अलग है और स्टेट की अलग है. ठीक है? Then jurisdiction of each tier are well defined in the constitution. मैं हमेशा बोलती हूँ अपने lectures में that constitution is our rule book, our magical book. तो ये जो मैजिकल बुक है इसी में हमें ये सारे रूल्स लेट डाउन है कि कौन सी गवर्नमेंट किन मुद्दों पे लॉज बनाएगी. ठीक है? Point number 4, feature number 4, fundamental provisions of the constitutions cannot be changed unilaterally. मतलब कि मान लो बदलते सोसाइटी के साथ आपको कुछ सेपरेशन ऑफ पावर में कुछ चेंज करना है, राइट? You have to change something in the federal structure of your country. Now, no one government can do it on its own. Unilaterally का मतलब है कि सेंट्रल गवर्नमेंट अगर चाहे तो खुद से नहीं कर सकती, स्टेट गवर्नमेंट अगर चाहे तो खुद से नहीं कर सकती. दोनों को मिल के उस चेंज के लिए कंसेंट देना पड़ेगा, तभी वो चेंज कॉन्स्टिट्यूशन में आएगा, राइट? सो ट्रू फेडरलिज्म का फीचर नंबर 4. फीचर नंबर 5, एम्पायर कौन? एम्पायर है हमारा जुडिशरी, और ये जो जुडिशरी है कॉन्स्टिट्यूशन को भी इंटरप्रेट करता है. देखो बच्चा, कॉन्स्टिट्यूशन इज रिटन इन लीगल लैंग्वेज, और वो लीगल लैंग्वेज का इंटरप्रिटेशन और कोई नहीं देता है, नाइदर लेजिस्लेचर नॉर एग्जीक्यूटिव, सिर्फ हमारा जुडिशरी देता है. ठीक है? उसके जो भी पावर होंगे, किस गवर्नमेंट के क्या पावर हैं, क्या पावर्स नहीं है, ये भी हमें कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ के जुडिशरी बताता है. ठीक है? जैसे कि सुप्रीम कोर्ट हो गया. नाउ फीचर नंबर 6,
सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू। अब हम कह रहे हैं कि बोथ द लेवल्स हैव टू बी इंडिपेंडेंट, तो इंडिपेंडेंट होने के लिए फाइनेंशियल ऑटोनॉमी जरूरी है। फाइनेंशियल ऑटोनॉमी मतलब किसी को भी किसी और से पैसे मांगने की जरूरत ना पड़े, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो। सो इसके लिए भी क्लियर चीजें लिखी हुई है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कि कैसे कैसे सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू होंगे एंड हाउ बोथ द लेवल्स वुड बी इंडिपेंडेंट फाइनेंशियली एज वेल, राइट। पॉइंट नंबर 7, ऑब्जेक्टिव क्या है, हम क्यों बनाए पावर शेयरिंग में फेडरल स्ट्रक्चर, क्यों करें हम? दो ऑब्जेक्टिव है। पहला तो ये है कि ये यूनिटी प्रमोट करता है। नाउ यू विल बी लाइक मैम वी आर डिवाइडिंग द पावर, हाउ इज इट प्रमोटिंग यूनिटी? Of course it is. बच्चा, when we divide the power, everybody feels accommodated, everybody feels पावरफुल। और जब सारी स्टेट्स पावरफुल फील करेंगी और सेंटर भी थोड़ा पावरफुल फील करेगा, सो ऑब्वियसली एवरीबडी वुड बी हैप्पी एंड द यूनिटी वुड बी प्रमोटेड, राइट। एक और ऑब्जेक्टिव होता है, वो होता है रीजनल डाइवर्सिटी। अब हमारे कंट्री को ले लो, फेडरल कंट्री है, राइट। तो हरियाणा का कल्चर अलग है, केरला का कल्चर अलग है, महाराष्ट्र का अलग है, असम का अलग है, यूपी का अलग है, राइट। एवरी स्टेट हैज इट्स ओन आइडेंटिटी, ओन कल्चर। सो अब ये जो है हम इसको रिप्रेजेंट सेंटर पे इकट्ठे तो नहीं कर सकते, तो हम क्या करते हैं, स्टेट अथॉरिटीज बनाते हैं, स्टेट गवर्नमेंट बनाते हैं, ताकि हर स्टेट की डाइवर्सिटी, रीजनल डाइवर्सिटी भी प्रिजर्व्ड रहे, राइट। So these are the features. Now in ideal federal system, mutual trust is very important. Center को state पे और state को center पे, and an agreement has to be there that yes, all of us have divided to go into the federal power sharing mode, right? तो ये दो चीजें जरूरी हैं फेडरलिज्म को strengthen करने के लिए। Now types of federation. Types of federation की बात करूं, so दो तरीके के होते हैं, one is coming together and another one is holding together. कमिंग टुगेदर फेडरेशन, मैं हमेशा बोलती हूँ ब्रेक द नेम, राइट। कमिंग टुगेदर, समथिंग इज कमिंग एंड इट इज गेटिंग टुगेदर एंड मेकिंग अ बिगर यूनिट, ये नाम से पता चल रहा है, इट इज एग्जैक्टली व्हाट इट साउंड्स। द कमिंग टुगेदर फाउंडेशन फेडरेशन का एग्जांपल है यूएसए। मतलब जब इंडिपेंडेंट स्टेट्स जिनका अलग पॉलिटिकल अथॉरिटी था, अलग सिक्योरिटी था, सब कुछ अलग था, जब वो खुद से डिसाइड करते हैं that they want to be in a bigger unit, they want to pull in their sovereignty, they want to pull in their security and become a bigger unit, तो हमें मिलता है कमिंग टुगेदर फेडरेशन। जैसे कि यूएसए, जैसे कि स्विट्जरलैंड, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया। इसको आप इजी पीजी तरीके से याद कर सकते हो, यूएसए ही याद रख लो। तो यू फॉर यूएसए, एस फॉर स्विट्जरलैंड, ए फॉर ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो एक यूएसए याद है तो बाकी एग्जांपल्स भी याद हो जाएंगे आपको। नाउ लेट्स कम टू द सेकंड काइंड ऑफ होल्डिंग टुगेदर। तो ये तब होता है जब हमारा कंट्री बहुत बड़ा होता है। फॉर एग्जांपल इंडिया, इंडिया इज अ काइंड ऑफ होल्डिंग टुगेदर, इट्स अ बिग कंट्री, राइट। सो बिग कंट्री को क्या होता है, बाद में समझ आता है कि नहीं यार, सारी चीजें खुद से नहीं संभाली जाएंगी, सेंट्रल लेवल पे नहीं संभाली जाएंगी, पावर को डिवाइड कर देते हैं, पावर को शेयर कर देते हैं। So when a large country decides to divide its power between the central authority and the state authority, what you get is holding together federation. अब इसमें एक छोटू सा फ्लॉ है, दैट होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन में सेंट्रल गवर्नमेंट के पास थोड़ी सी ज्यादा पावर होती है, जिसमें कि जो पहले वाला बताया कमिंग टुगेदर में, उसमें सबके पास इक्वल पावर होती है। तो होल्डिंग टुगेदर इंडिया वाला जो केस है, सेंटर के पास थोड़ी सी ज्यादा पावर होगी। इनफैक्ट स्टेट्स भी अलग अलग होती हैं, तो कुछ स्टेट्स के अकॉर्डिंग कि उनकी क्या नीड्स हैं, क्या इंटरेस्ट है, कुछ स्टेट्स के पास, मैं ज्यादा तो नहीं बोलूंगी, बट स्पेशल पावर्स हो सकती है, ठीक है। तो इसका एग्जांपल हम याद करेंगे SIB से, सिब, S फॉर स्पेन, I फॉर इंडिया एंड B फॉर बेल्जियम। कूल। और ये जो क्वेश्चन है दोनों के बीच का डिफरेंस, ये है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 3 मार्कर बोर्ड क्वेश्चन फॉर यू, ठीक है। चलो, अब इंडिया कैसे फेडरल है? पहली बात तो ये है कि कहीं पे लिखा ही नहीं है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं लिखा दैट इंडिया इज अ फेडरल स्ट्रक्चर। बट अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन को देखो, क्या क्या रूल्स दिए हैं, और हमारी डेमोक्रेसी की प्रैक्टिस को देखो, सो यू विल अंडरस्टैंड दैट वी आर डेफिनेटली फेडरल, राइट। जब इंडिया इंडिपेंडेंट बना था, तब हमारे पास क्या है, सेवरल प्रिंसली स्टेट्स भी कंट्री का पार्ट बन गई थी। इसीलिए हमने कभी इंडिया को इंडिया कम बोलते हैं, हम इसे यूनियन ऑफ स्टेट्स बोलते हैं, मतलब सारी स्टेट्स मिलजुल के इंडिया को बनाती हैं, राइट। तो हमारा कॉन्सेप्ट बेसिक लेवल पे ही हम काफी फेडरल हैं। इनिशियली जो है हमारे पास सिर्फ 2 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट थी। नाउ वी डिसाइडेड इन 90s, वी डिसाइडेड दैट नो, वी नीड टू हैव अ थर्ड लेवल आल्सो, एंड दैट इज हाउ वी पुट डिसेंट्रलाइजेशन इनटू पिक्चर। डोंट वरी, इसका एक सेपरेट सेशन आएगा, यू विल अंडरस्टैंड ऑल ऑफ इट, बट इफ यू हैव एनी डाउट, यू नो वेयर टू रीच मी, राइट इट डाउन इन द कमेंट्स बिलो। अच्छा, सो अब बात करते हैं 3 लिस्ट।
So मैंने बताया ना that in federalism power is shared and every constituent unit has its own area of jurisdiction. Yes. अब इसी के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 3 लिस्ट बनाई हुई हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट. लेट्स स्टार्ट विद द यूनियन लिस्ट. यूनियन लिस्ट नाम से ही पता चल रहा है, यूनियन गवर्नमेंट लॉ बनाएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बनाएगी. सो ऑब्वियसली, सो दिस इज द लिस्ट जिसमें वो सब्जेक्ट्स हैं जो हम पूरी कंट्री के लिए यूनिफॉर्म रखना चाहते हैं. No ratification here. Just try and use the common sense. पूरी कंट्री के लिए आप क्या यूनिफॉर्म रखोगे? फॉरेन अफेयर्स, करेंसी. अब दिल्ली में रुपी चलता है तो केरला में भी तो रुपी चलता है, राइट? सो करेंसी यू विल कीप यूनिफॉर्म फॉर द एंटायर कंट्री. बैंकिंग यू विल कीप. Foreign affair you will keep. Communication you will keep. And those are your examples for union list, right? Like I said, central government makes laws on this list. Then comes your state list. अब इसी का थोड़ा सा ऑपोजिट वर्जन है. स्टेट लिस्ट में वो सब्जेक्ट्स होते हैं जो पर्टिकुलर स्टेट को दिए जाते हैं. नाउ लाइक पुलिस ले लो, सुना होगा ना, महाराष्ट्र पुलिस अलग होती है, हरियाणा पुलिस इज डिफरेंट, देन केरला पुलिस इज डिफरेंट, देन आंध्रा पुलिस इज डिफरेंट. तो पुलिस जो है वो हर स्टेट में अलग होती है, तो वो स्टेट लिस्ट में आता है, राइट? ये लिस्ट हम स्पेशली इसलिए बनाते हैं बिकॉज हर स्टेट की रिक्वायरमेंट्स अलग होती है. For example, agriculture. Not every state is as fertile as the North Indian states, right? तो हर स्टेट का एग्रीकल्चर थोड़ा अलग होगा, इरिगेशन सिस्टम थोड़ा अलग होगा. स्टेट डिस्पैरिटीज जहां पे आती हैं वो सब्जेक्ट्स इस लिस्ट में आ जाते हैं. Easy peasy, no ratification involved. Now, next list is concurrent list. नाम से पता चल रहा है, break the name. The name suggests that this list has the subjects on which both the government, central as well as state, can make laws. लेकिन अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट आता है सेंटर और स्टेट के बीच में किसी भी टॉपिक रिलेटेड टू दिस लिस्ट, देन सेंटर लॉ प्रिवेल. तो यहाँ पे सेंटर को थोड़ा एक अपर हैंड मिल जाता है. द एग्जांपल्स आर मैरिज, सक्सेशन, अडॉप्शन, ऐसे सब्जेक्ट्स इसमें आते हैं. तो ये 3 लिस्ट इंडिया को डेफिनेटली फेडरल बनाते हैं. इसके अलावा एक होता है रेजिडुअरी सब्जेक्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज रेजिडुअरी? रेजिडुअरी इज एनीथिंग व्हिच इज लेफ्ट बिहाइंड. जैसे चाय आप जानते हो, तो जो चाय पत्ती रह जाती है, दैट इज कॉल्ड रेजिड्यू, राइट? सो ये वो सब्जेक्ट्स हैं जो जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे, they couldn't think of it because the society has completely changed from that time, right? वो इन सब्जेक्ट्स को सोच ही नहीं पाए थे, तो वो बाद में ऐड हुए और बाद में इनके लिए सेपरेट लिस्ट तो नहीं बनी, बट एक नाम दे दिया गया रेजिडुअरी सब्जेक्ट. फॉर एग्जाम्पल, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर. अब कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जैसा टॉपिक जब बना था कॉन्स्टिट्यूशन तब तो दिमाग में नहीं आया था, बट नाउ इट इज देयर. एंड हु मेक्स लॉज ऑन इट? अगेन सेंट्रल गवर्नमेंट. तो एक और अपर हैंड मिल गया है सेंट्रल गवर्नमेंट को इंडियन फेडरल स्ट्रक्चर में, राइट? Then this was all for this class. We learned what is federalism, we learned what is holding together federation, coming together federation. We also learned what is unitary government, and we also learned all the 3 important lists in our syllabus. Now let me give you very important 1 mark question, जिसके आंसर आपको अगेन मुझे कमेंट्स में बताने हैं बच्चा. एंड जो सबसे पहले आंसर बताता है, they get to be on the leaderboard in the next session. So you have to subscribe the channel for it, ताकि आपको notification आए, you watch the video सबसे पहले, you answer the question सबसे पहले, and you get to be on the leaderboard. So, पहला question है, which country is an example of coming together federation? आपको 4 example दिए हैं, you have to tell me. Second question is, pick out the countries that follow the unitary system of government. Again, you have to tell me in the comments below. Then one homework question is also there, which is, if a subject does not fall in any of the 3 lists, what does it become, or what do you call it? Okay, so tell me in the comments below the answer to these questions, and don't forget to like the video so that I know that you're understanding, and don't forget to leave your doubts in the comments. I'll see you next time. Till then, take care. Bye bye.